My dear friends, now I am taking a very important question, essential of a shoot. There are so many essential, I am taking one by one. First essential, cause of action. The term cause of action has neither been defined in CPC nor in any other enactment. However, the meaning of it has been judicially considered in many decisions, as in Reed versus Brown, accepted the definition given in Cook versus Gill, that it meant every fact which it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment of the court. It does not comprise every piece of evidence which is necessary to prove each fact, but every fact which is necessary to be proved. Generally, stated cause of action means a bundle of essential facts which it is necessary for the plaintiff to prove before he can succeed in the case. My dear friends, this is the statement in English, or this is the definition of cause of action in English. मैं आपको हिंदी में बताना चाहता हूं, ये कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन सीपीसी कोड के अंदर नहीं है, लेकिन ये जुडिशली दूसरे डिसीजन हैं, जैसे रीड वर्सेस ब्राउन accepted the definition given in Cook versus Gill. देखो, these are the cases. According to these, the definition of cause of action is cause of action वास्तव में है क्या, ये बताऊंगा आपको. जब प्लेंटिफ प्लेंट डालता है उसके अंदर फैक्ट्स मेंशन करता है, क्योंकि फैक्ट्स तो उसे देने पड़ेंगे जो शूट डाला है. तो इस प्रकार से जब ये फैक्ट्स या मटेरियल फैक्ट्स उसके अंदर डाल दिए तो उनको सिद्ध भी करना पड़ेगा. ऐसे थोड़ा कि डाल दिए तो फिर अब कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी तो सिद्ध करना पड़ेगा. उनको सिद्ध करना जो है, यानी उनके अगेंस्ट जो एक्शन होगा उनको सिद्ध करना जो है, वही कॉज ऑफ एक्शन है. यानी वो फैक्ट्स जो हैं वो कॉज ऑफ एक्शन हैं वास्तव में. यानी उन फैक्ट्स के आधार पर ही एक्शन होगा, लेकिन उन फैक्ट्स को कैसे प्रूव करें, एविडेंस से करें या दूसरे तरीके से करें, ये प्लेंटिफ के ऊपर है उन फैक्ट्स को प्रूव करना. ये इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ. यदि वो अपने फेवर में जजमेंट चाहता है, उन फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा, और चाहे एविडेंस से प्रूव करे चाहे दूसरे तरीके से प्रूव करे, कोर्ट के जजमेंट से पहले प्रूव करना पड़ेगा. ये है कॉज ऑफ एक्शन. सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम टेकिंग सेकंड एसेंशियल. My dear friends, second essential is parties to the suit. According to the Odgers, in the selection of parties, there is a twofold chances of error. First, a plaintiff may omit parties whose presence is essential. A plaintiff may add parties whose presence is improper. Hence, one must learn what parties are necessary, who must be joined, and who may be joined or not, as the plaintiff chooses. Classification of parties. There are two types of parties. First, A. Necessary parties. A necessary party is one in whose absence no order can be made effectively. Second, proper parties. A proper party is one in whose absence an effective order can be made, but presence is essential in the court.
So, my dear friend, this is the definition, or this is according to the what parties are added and what parties are neglected in this second essential. ऑर्डर के अनुसार पार्टियों का सिलेक्शन जो है ना, वो बहुत ठीक से होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और वो ये कहते हैं ये गलती दो प्रकार से होती है। पहली प्रकार की गलती क्या है कि प्लेंटिफ उस पार्टी को नेग्लेक्ट कर देता है, ओमिट कर देता है जिसकी प्रेजेंस आवश्यक है। दूसरी गलती क्या करता है प्लेंटिफ, उन पार्टियों को ऐड करता है जिनकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है। दो केसेस है। अब ये बहुत जरूरी है उनको एक प्लेंटिफ के लिए जानना कि कौन सी पार्टी को शूट के अंदर ज्वाइन कराना चाहिए और कौन सी पार्टी को शूट में ज्वाइन नहीं कराना चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी प्लेंटिफ। अब पार्टीज दो प्रकार की होती है, दो काइंड्स है पार्टीज की, एक नेसेसरी पार्टी और एक प्रॉपर पार्टीज। अच्छा, नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है? नेसेसरी पार्टी इज वन in whose absence no order can be made effectively। यानी नेसेसरी पार्टी नाम से ही पता लग रहा है, नेसेसरी वो है जिनकी एब्सेंस में कोई इफेक्टिव ऑर्डर जो है लिया ही नहीं जा सकता, उनका होना बहुत आवश्यक है। और प्रॉपर पार्टीज वो हैं जिनकी एब्सेंस में इफेक्टिव ऑर्डर लिया जा सकता है। नेसेसरी पार्टीज के एब्सेंस में इफेक्टिव ऑर्डर नहीं लिया जा सकता और प्रॉपर पार्टीज के एब्सेंस में लिया जा सकता है। लेकिन प्रॉपर पार्टीज में एक विशेष बात है कि उनका कोर्ट में होना बहुत ही जरूरी है। ये साथियों सेकंड एसेंशियल है पार्टीज टू द शूट। अब मैं तीसरा एसेंशियल लेने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड एसेंशियल ऑफ ए शूट, ज्यूरिसडिक्शन। जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हर कोर्ट की एक अपनी सीमा होती है। यानी हर कोर्ट ये हर शूट के लिए एसेंशियल नहीं होता। यानी हर शूट के लिए वहां ऐसा नहीं होता कि कोई भी शूट जाकर के किसी कोर्ट में डालते, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट शूट जो है वो डिफरेंट कोर्ट को अलॉट किए जाते हैं और उसकी वो सीमाएं निर्धारित कर रखी। उन्हीं कोर्टों में वो केसेस उन्हीं कोर्टों में जाते हैं जिनके लिए वो निर्धारित किए गए। ये ज्यूरिसडिक्शन है। द थर्ड एसेंशियल ऑफ ए शूट इज ज्यूरिसडिक्शन। It is the duty of the pleader to see that the court having jurisdiction to try the suit, because all the courts are entitled to take all the suits of all, because all the courts are not entitled. All the courts are not आएगा यहां पर, are not entitled to take all the suits of different type। यानी सभी कोर्ट इसके लिए एंटाइटल नहीं है कि कोई भी शूट जाए उसको ले ले। नो नो नो, हर कोर्ट की सीमा है। पिक्यूनियरी केसेस दूसरे कोर्ट में जाएंगे, प्रॉपर्टी के केस दूसरे कोर्ट में जाएंगे और एक क्रिमिनल केस दूसरे कोर्ट में जाएंगे। ये साथियों आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। सभी डिफरेंट टाइप ऑफ शूट्स डिफरेंट कोर्ट में ही जाएंगे जहां पर वो अलॉट किए हुए हैं। ये है ज्यूरिसडिक्शन का मतलब। अब जैसे देखो एग्जांपल है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सिविल कोर्ट में जाएगी। अब तो चौथा एसेंशियल क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ शूट।
अब सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये सब्जेक्ट मैटर ही है कि जैसे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये उस शूट का सब्जेक्ट मैटर है। उस सब्जेक्ट मैटर को देखकर ही डिसीजन लिया जाता है ये किस कोर्ट के अधीन ये केस आएगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए शूट मे बी एनीथिंग फॉर विच एन एक्शन may be launched in a civil court. For example, any movable or immovable property may form to be the subject matter of issue. जैसे मैंने अब ऊपर बताया था, देखो जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस है उनको वो केसेस सिविल कोर्ट में ही लॉन्च किए जाएंगे और उनका डिसीजन सिविल कोर्ट में ही होगा। इसी प्रकार पिकनरी केसेस पिकनरी कोर्ट्स में जाएंगे जहां पर धन संबंधी या पैसे संबंधी केसेस लिए जाते हैं, वो कोर्ट उन्हीं का फैसला करेंगी। जैसे क्रिमिनल कोर्ट है, इफ ये सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो गए और वो उन्हीं कोर्ट में जाएंगे क्रिमिनल में, वहां उनका डिसीजन होगा। दिस इज द यानी सब्जेक्ट मैटर। चौथा क्या है? सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस टाइप का सब्जेक्ट मैटर होगा उसी प्रकार का शूट उसी प्रकार के कोर्ट में जो है सबमिट किया जाएगा और फाइल किया जाएगा। ये है साथियों। तीसरा एसेंशियल था ज्यूरिसडिक्शन। सभी कोर्टों की अपनी अलग अलग सीमाएं होती हैं, ये अर्थ है। चौथा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द शूट। शूट के सब्जेक्ट मैटर भी डिफरेंट होते हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट मैटर होंगे शूट उसी प्रकार से एक्सेप्टेड मतलब होते हैं। ये है चौथा। और अब मैं पांचवा एसेंशियल लूंगा शूट का। My dear friends, last essential, relief claimed. Lastly, while framing a suit, the pleader must give his attention to the relief which the plaintiff wants to claim through the suit. साथियों, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जब प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो किस लिए फाइल करता है? वो रिलीफ के लिए तो फाइल करता है। तो ये प्लीडर की ड्यूटी बनती है कि उस शूट के अंदर जो रिलीफ बनती है उसको मेंशन करे। और ये प्लेंट के यानी पार्ट्स भी हैं। ये प्लेंट का थर्ड पार्ट है कि रिलीफ उसको जो है प्लेंटिफ को मिलनी चाहिए, यानी उसमें मेंशन करना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ रिलीफ्स ए प्लेंटिफ वांट्स, ये उसके अंदर मेंशन करना चाहिए। लेकिन ये ड्यूटी किसकी है? प्लीडर की है। ये प्लेंट्स के जो चार पार्ट हैं, तीसरा पार्ट रिलीफ का है, रिलीफ क्लेम्ड। तो सेकंड पार्ट में क्या, बॉडी ऑफ प्लेंट में क्या होता है? सारे अपने कारण, शूट के कारण लिखता है वो। मैं इसलिए कोर्ट में आया हूं, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये नुकसान हुआ, डिफेंडेंट ने ये किया वो किया, वो सब कुछ लिखता है। वो किसमें? बॉडी ऑफ प्लेंट में। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है? फिर उन्हीं के आधार पर जो उसने बॉडी ऑफ प्लेंट में पैराग्राफ बनाए हैं उनके आधार पर वो तीसरे पॉइंट में रिलीफ क्लेम करता है कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। वो रिलीफ किसी प्रकार की भी हो सकती है, धन संबंधी हो या दूसरी कोई रिलीफ हो, वो कोर्ट से प्लेंटिफ चाहता है। तो ये रिलीफ जो है ये प्लीडर की ड्यूटी है कि वो उस रिलीफ को ठीक ढंग से मेंशन करे अपने शूट के अंदर, ताकि उसे कोर्ट द्वारा रिलीफ मिल सके। ये पांचवा एसेंशियल है शूट का, यानी शूट के अंदर ये मेंशन होना चाहिए। दिस इज द फिफ्थ एसेंशियल ऑफ ए शूट। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 5 एसेंशियल यहां पर बताए आपको। पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शूट के लिए, और एक शूट में वो पांचों चीज
होती भी हैं और होनी भी चाहिए, और प्लीडर उनको सब को मेंशन भी करता है केस के अंदर, और प्लेंटिफ उन पांचों से अवगत भी होना चाहिए। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा। मैं ऐसा समझता हूं कि आपके ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा, क्योंकि सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। और अंत में साथियों मेरी वही बात है, जैसे मैं हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह दबास। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।